بہرحال اپنے گاؤں کے میں بچوں کی تمنا باقی نہیں رکھوں گا، انشاءاللہ بیٹھے رہو۔ اشعار پنجابی میں بھی بہتر طریقے سے سنا دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پنجابی کے وہ شعر سناؤں گا جو سنے نہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو وقت ہوتا ہے، یہ میرا گاؤں ہے، یہ چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، یہ مجھ سے ملے رہیں گے انشاءاللہ ساری کامیاب باتیں۔ ایک بات، میری تقریر میں زیادہ تیزی کے ساتھ بولنا نہیں چاہتا، بس بات کو آپ کو صرف سمجھانا ہے۔ جیسے مدرسے میں پڑھایا جاتا ویسے آپ کو پڑھنا ہے، مجھے صرف رنگبازی کرنا نہیں آتی جی جی جی، کہ ادھر سے ادھر گڈ بڈ کر کے سمجھا دیا جائے، اسے نہیں، کھلا کھلا سمجھیے بہت اچھے طریقے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہندوستان کی کسی بھی عظیم جگہ میں جاتا ہوں تو جانے کے بعد زیادہ نہ تو کبھی تعریف و توصیف کا محتاج ہوں، میں تعریف ہی نہیں کرتا۔ جیسے کہ علماء بیٹھے ہیں اور اگر جس دن چاہو اس دن دکھا دیں۔ میں نے کم سے کم 11 بہترین عمارتیں اپنی اس تھوڑی سی پڑھائی کے دوران بنا رکھی ہیں جو قلعہ آپ کو علاقہ نہیں ضلع میں نہیں ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ احسن البرکات جیسا مدرسہ آپ کے ضلع میں نہیں ملے۔ اب آپ مجھے نہیں اور کوئی بہت دور نہیں، تمہاری رشتہ داریاں بھی ہیں، خدا گنج پہنچو، خدا گنج جانے کے بعد اکبری پہنچنا، پوچھنا مدرسہ احسن البرکات کا ہے، تو جب وہاں پہنچو گے اس پہ بڑا پھاٹک لگا ملے گا، وہاں آپ کو کیا کیا ملے گا؟ ایک تو آپ کو انٹر تک ہندی بھی اس میں ملے گی، عالم تک کورس بھی ملے گا، حفاظ کرام کی مکمل دستار بندی بھی ہوگی، وہاں آپ کو کمپیوٹر بھی لگے ملیں گے، وہاں آپ کو سلائی مشینیں بھی لگی ملیں گی۔ مگر میں نے کبھی آج تک کرتا والوں کو یہ نہیں بتایا میں نے اتنا بڑا ادارہ قائم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، واہ 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 واہ۔ تو تمہاری رشتہ داریاں ہیں یار، خدا گنج کتنی دور ہے، قدم دور پہ ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ جب چاہو تب دیکھو، یہ اللہ کا کرم ہے، کیونکہ ہمیں دکھانا نہیں ہے، ہمیں اپنے پروردگار کو راضی کرنا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ہمیں اپنے مولا کو راضی کرنا، بس ہمارا رب راضی ہو جائے، سب راضی، ہمارا کام ہو گیا۔ تو یہ علماء کرام کا جامع مجمع آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں برادر کبیر حضرت علامہ مولانا محمد یونس رضا صاحب قبلہ و دیگر تمام علماء اہل سنت، سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدال افلاک بلغدین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا،
खलील अल्लाह को हाजत रसूल अल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है खलील अल्लाह को हाजत रसूल अल्लाह की। और हजरत काफी अलैहिर्रहमान ने फरमाया था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरों बाग में हैं, कोई दिन के चहचहे, हम सफीरों बाग में हैं, कोई दिन के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। और ऐ अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न, ऐ अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जो कुरान की आयत मुबारका पढ़ी, तर्जमा तो बराबर आप हजरात सुनते ही रहे और सब अपने अपने हिसाब से तर्जमा सभी कर देते हैं और सभी बता देते हैं। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कोई कह देता है कि हर जानदार चीज को मौत आना, कोई कहता है हर जानदार चीज को मरना है, कोई कहता है हर जानदार चीज को यहां से जाना है। ये सारी चीजें हैं। मैं ये कहता हूँ, मेरे बात समझ में नहीं आती। कुरान फरमाता है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज सिर्फ इतना है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। क्योंकि अब मेरे बात समझ में ये नहीं आई कि इंसान मरता ही नहीं। क्यों मरता नहीं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, जुमा के दिन कब्रिस्तान जाया करो, तुम्हारे मुर्दे तुम्हारा इंतजार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहे इरशाद फरमाते हैं, जुमे के दिन अपने कब्रिस्तान जाया करो, तुम्हारे मुर्दे तुम्हारा इंतजार करते हैं। और फिर जब जाया करो तो उन्हें ऐसे नहीं सलाम किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम किया करो। बात मेरे समझ में ये नहीं आती, जब मर गए तो सलाम कैसा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात ही समझ में नहीं आती। कुरान पढ़िए और उसके बाद उसका मफ़हूम, उसका तर्जमा, उसका मतलब समझिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हम नहीं कहते, कोई आलिम कहता। इमाम अहमद रजा ने कहा होता, अगर लोग इतराज कर देते, मैं कहता हो सकता है अपनी तरफ से कुछ कह देते, मगर जो नबी कह रहा है वो भी नहीं मानोगे, फिर क्या मानोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जुमा के दिन कब्रिस्तान जाया करो, तुम्हारे मुर्दे तुम्हारा इंतजार करते हैं। और जब जाया करो तो ऐसे नहीं, कब्र वालों को सलाम किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कब्र वालों का सलाम क्या है? नबी ने ही बताया कि कब्र वालों को सलाम कैसे करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो, मुझसे इख्तिलाफ वाली बातें नहीं आती। मैं तो असलियत में मैं ये चाहता हूँ कि रसूल की सही बात दुनिया तक पहुँच जाए। क्या बात है, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, रसूल की सही बात दुनिया तक पहुँच जाए, अहले ईमान तक पहुँच जाए, ताकि ये लोग खुद समझ जाए मेरे पैगंबर ने हमें क्या बताया। नबी ने फरमाया, जब कब्रिस्तान जाया करो तो मुर्दों को वहां पहुंचने के बाद कब्र वालों को सलाम किया करो और कहा करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अहलल। सुभान अल्लाह। अरे भैया, यही तो बात है। वो कब्र वाले हैं तो उन्हें कब्र वाला सलाम किया जाता, और जो दुनिया वाला मिलता है तो
तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, अस्सलाम वालेकुम नाना जान, अस्सलाम वालेकुम लानी जान, अस्सलाम वालेकुम बिरादर कबीर, बिरादर सगीर, सब सलाम एक दूसरे को कर रहे हो। उधर जब पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्हें भूल न जाना, कब्र वालों को भी याद रखना, कब्र वालों को भी सलाम कर लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह के नबी की दूसरी हदीस, अल्लाह के महबूब फरमाते सलाम इतनी जोर किया करो ताकि सुनने वाला सुन ले, अगर उसने सुना नहीं, जवाब न दिया तो सलाम जमीनों आसमान के दरमियान मुअल्लक रहता है, यानी लटका रहता है। तो नबी ऐसा हुक्म नहीं दे सकते कि सलाम को लटका दिया जाए, यानी कब्र वाले जवाब न दे। तो अब हमारा अकीदा ये हो गया, हमारे नबी ने हमें बता दिया जब तुम कब्र वालों को सलाम करते हो तो कब्र वाले तुम्हें तुम्हारे सलाम का जवाब दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कब्र वाले तुम्हारे सलाम का तुम्हें जवाब देते हैं। सुभान अल्लाह। अब जब ये पता चल गया कि कब्र वाले जवाब देते हैं तो अब हमने कहा फिर मतलब क्या है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अरे कहा तुम समझे ही नहीं, नफ्स समझो किसे कहते हैं? नफ्स कहते हैं ख्वाहिश को, नफ्स कहते हैं तमन्ना को, नफ्स कहते हैं आरज़ू को, नफ्स कहते हैं मांग को, नफ्स कहते हैं तलब को। ये लोगों, जब गाड़ी मांगे तो नफ्स है, जब मकान मांगे तो नफ्स है, जब कपड़े मांगे तो नफ्स है, जब दौलत मांगे तो नफ्स है, जब दुनिया मांगे तो नफ्स है। अरे नफ्स को मौत आ जाती है, इंसान को मौत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। ये चला कि इंसान को मौत नहीं आती, नफ्स को मौत आती है। जब वो दुनिया से चला गया, जब तक दुनिया में रहा उसकी हर तलब है, मकान बन जाता, गाड़ी हो जाती, नहीं तो मोटरसाइकिल ही ले लेते। जब मोटरसाइकिल की मांग हुई, मोटरसाइकिल मिल गई तो कहा फोर व्हीलर होती, फोर व्हीलर मिल गई तो उसके बाद अब हेलीकॉप्टर की तमन्ना कर रहा है, वो भी जब मिल गया तो अब प्लेन की तमन्ना कर रहा है। तमन्ना कभी खत्म नहीं होती। अरे बड़े बड़े दौलत वाले हिंदुस्तान के हैं, उनकी तमन्ना वारजू खत्म नहीं हुई। मेरे प्यारे, उसी को नफ्स कहते हैं, जो मांगे उसे नफ्स कहते हैं, जो तलब करे उसे नफ्स कहते हैं, जो हाजतमंद हो उसे नफ्स कहते हैं। उस नफ्स को मौत आ गई, अब इसे कोई हाजत नहीं है, अब इसे खुदा से इसे मतलब है, खुदा को इससे मतलब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत सुभान अल्लाह। सारी तलब खत्म हो गई, खत्म हो गई। मेरे प्यारे, अब एक हदीस सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, देखिए। और अल्लाह ताला ने नबी को तो ऐसा मकाम अता फरमाया। हदीस क्या है? लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन फताजल्ला व कुल्लु नबिय्यिन दावतुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हर एक नबी को एक एक दुआए मुस्तजाब अता फरमाई, और जिसे देने के बाद रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे नबी, ये दुआ जब भी तुम मांग लोगे कभी रद्द नहीं होगी। क्या फरमाया अल्लाह ने? ये दुआ दुआए मुस्तजाब है, इसे जब भी मांग लोगे रद्द नहीं होगी। अब दुआ सबने मांगी, मूसा कलीमुल्लाह की कौम ने बात नहीं मानी, जब उनका पीछा किया तो मूसा कलीमुल्लाह ने वही दुआए मुस्तजाब मांग ली, और जब दुआ मांगी तो दरियाए नील में सब गर्क। जी। हजरत नूह की कौम ने जब उनकी बात न मानी, उन्होंने दुआए मुस्तजाब मांग ली, उन्हें तूफान नूह में गर्क कर दिया गया। जब भी जिसकी जरूरत लगी दुआएं मुस्तजाब मांग ली, मगर अल्लाह के महबूब से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आपके ऊपर पत्थर बरसाए गए, आप दुआएं मुस्तजाब क्यों नहीं मांगे? वाह वाह वाह। आपको मक्के से भगाया जा रहा, आप दुआएं मुस्तजाब क्यों नहीं मांग लेते? आपको इस तरह से ताइफ में मारा गया, आप दुआ क्यों नहीं मांग लेते? या रसूल अल्लाह, आपको इतना सताया गया, आप दुआएं मुस्तजाब क्यों नहीं मांग लेते? महबूब फरमाते हैं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा मगर दुआएं मुस्तजाब नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। या रसूल अल्लाह, क्यों? दुआएं मुस्तजाब को क्या करोगे? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्नी इख्तिबात व दावती शफाअतन ले उम्मती इला यौमिल क़यामा। मैंने क़यामत के दिन अपनी उम्मत
महबूब आता है, कैसा प्यारा रसूल है, ऐसे नबी को कैसे भूलेंगे, ऐसे आका को कैसे भूलेंगे, ऐसे पैगंबर को कैसे भूलेंगे। नबी अभी आप सुन रहे थे, अभी थोड़ी सी इस्लाह की थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल, किस पे? कुल इन्नमा अना बशरुम पे जो इस्लाह की गई। क्या कहा गया कि नबी जो है वाकई कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, यानी बशर है मगर जाहिर में, जाहिर में सुभान अल्लाह, बशर है मगर जाहिर में, बातिन में कैसे? तो कहते युहा इलैया, बातिन में कैसे है? तो कहा सुनो, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, वाह 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 वाह, बातिन में आप नूरुन अला नूर है। इसकी बहुत सी हदीसें हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंधी लगवाई, खून निकला, मेरे आका ने दिया, इरशाद फरमाया सहाबी इसको महफूज जगह दफन करा। वो खून लेके चले गए, दरख्त के करीब पहुंचे, सोचा जड़ में गाड़ दें, जड़ में दफन कर दें, हिफाजत रहेगी। मगर थोड़ी देर के लिए उन्होंने जब सोचा तो कहने लगे अगर दरख्त गिर गया फिर किसी का पैर पड़ेगा तो अल्लाह के महबूब के खून मुबारक की तौहीन हो जाएगा। वहां नहीं दफन किया, मकान के अंदर पहुंचे, सोचा यहाँ दफन कर दे, कहा कभी मकान खत्म हो जाएगा, इस पे किसी के कदम पड़ेंगे, मेरे आका के खून की तौहीन हो जाएगी। सहाबा का अकीदा देखो, हम तो ऐसा अकीदा बना भी नहीं पाएंगे, मगर मेरे प्यारे वो सहाबा थे, हम सहाबी के गुलाम भी नहीं सही हो पा रहे हैं मेरे प्यारे। अब उन्होंने काम क्या किया? उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने जगह तलाश की, जगह न मिली तो फिर सोचने लगे सबसे प्यारी जगह तेरे पास है, क्या वो जगह क्या है? उन्होंने वो खून उठाया और पी दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा एक बात बताओ, कहोगे पी लिया, अब पी लेने के बाद मसला फुक़हा किराम से पूछो, उलमाए किराम से, इसमें कोई फिरके वाली बात नहीं कर रहा, मुझे फिरके वाली बात से मतलब भी नहीं है, मुझे अपने आका की हदीस से मतलब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। अब सहाबी ने क्या किया? पी लिया। अब नबी से जब पूछोगे, फुक़हा से, इमाम आज़म से जब पूछोगे खून पीना कैसा, तो कहेंगे बकरी का गोश्त खा सकते हो मगर खून हराम, जी, मुर्गे का गोश्त खा सकते हो, खून हराम, हर हलाल जानवर का गोश्त हलाल, खून हराम, और जिसका गोश्त ही हराम हो उसका खून हलाल कहां से हो गया? वाह 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 वाह, जिसका सभी हराम हो उसका खून हलाल कहां से? ऐसा अभी क्या तुम नहीं जानते? नबी के जमाने में हो कि तुम्हें ये पता नहीं खून पीना हराम है? तो कहने लगे मैंने खून पिया ही कब? कहा पिया तो खून है। कहा सुनो, जिस्म से खून निकलता है, पानी से कभी शरबत ऐसे नहीं निकलता, कभी पानी से शक्कर नहीं निकलती, फरमाया पानी से पानी निकलता है, जिस्म से खून निकलता है। जो हमने पिया है वो इसलिए पिया है कि अल्लाह फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के हमने तुम में अपना नूर भेज दिया। जब नूर आ गया तो नूर से नूर निकलता है, नूर से खून नहीं निकलता। मैंने खून समझ के नहीं, नूर समझ के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, नूर समझ के, मैंने खून समझ के नहीं, नूर समझ के पिया है। सुभान अल्लाह। अब ये सहाबी का अकीदा है, फरमाते मैंने नूर समझ के पी लिया। हम नहीं पी रहे, सहाबी पी रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी का अकीदा देखो, उनका इश्क देखो। अब बात आ गई है, अब उन्होंने पी लिया तो पता ये चला कि महबूब नूर रहे। अब वजह क्या है? फिर दिखाई क्यों बशर दे रहे हैं? मदीना में चलते क्यों दिखाई दे रहे हैं? बीवी बच्चे क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये सारी चीजें क्यों चमक रही हैं? तो हमने कहा सुनो, इसकी वजह जी, इसकी वजह वजह है। वजह क्या है? वजह ये थी, हर चीज में हिकमत है रब की, हर चीज में रब की हिकमत है, हर चीज में परवरदिगार की हिकमत है। मेरे प्यारे, मुर्गियों का एक फार्म तैयार कर लो और घर से एक बिल्ला ले जाओ, छोड़ दो, कह दो ये अकेला है, दोस्ती कर लेना। मुर्गियां फड़फड़ा के भागने लगी। हमने कहा ये बेचारी अकेली है, तुम हजारों की तादाद में हो, इससे प्यार कर लो, मोहब्बत कर लो। कहा शक्ल
नहीं मिलती दोस्ती शक्ल नहीं मिलती, दोस्ती नहीं हो दोस्ती नहीं हो पाएगी। अगर शक्ल मिल जाती तो दोस्ती कर लेते, जब शक्ल नहीं मिलती तो दोस्ती कैसी। मुर्गियां भागने लगी, अकेली बिल्ली को देखा मुर्गियां फड़फड़ाने लगी। सैकड़ों की तादाद में बकरियां आई, एक भेड़िया छोड़ा गया, कहा 4 पैर वाले तुम हो, 4 पैर वाला नहीं आया है, जैसे तुम वैसे ही है, इससे दोस्ती कर लो। बकरियां भागने लगी, कहा क्यों, कहा दोस्ती नहीं हो पाएगी, चेहरा मोहरा मिल नहीं रहा है, जब मोहरा चेहरा मिलेगा नहीं दोस्ती हो नहीं पाएगी। तो पता चला जब चेहरा मोहरा न मिला तो दोस्ती नहीं हो पाई। रब ने इरशाद फरमाया, रब ने इरशाद फरमाता है यही तो हिकमत है, महबूब बशर बन के जाओ, वरना ये सब बशर है, तुम नूर बन के जाओगे, सब भाग जाएंगे, फिर कुरान कैसे पढ़ाओगे, नमाज कैसे सिखाओगे, इस्लाम का कानून कैसे बताओगे, चलने का ढंग कैसे बताओगे, जिंदगी गुजारने का तरीका कैसे दोगे। इसलिए है महबूब तुम नूर बन के न जाओ, बशर बन के जाओ, ताकि कोई भाग। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बशर बन के जाओ, नूर बन के न जाना, नूर बन के जाओगे सब भाग जाएंगे, और जब सब भाग जाएंगे कलमा किसे पढ़ाओगे, रोजा किसे सिखाओगे, नमाज किसे बताओगे, कुरान किसे बताओगे। इसलिए मेरे महबूब तुम नूर बन के न जाओ, बशर बन के जाओ, हम तुम्हें जाने तुम हमें जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे है मुस्तफा जाने रहमत, समझी नहीं पाओगे मुस्तफा जाने रहमत का हाल। अब बहुत से लोग ये कह देते हैं भैया कि देखो तो क्या एक चीज कभी 2 हो पाती। अरे हमने कहा हो तो 10 भी जाती है, मानो या न मानो, सुभान अल्लाह, हो तो 10 भी जाती है। कहा मौलाना हकीमुल्ला एक की तुम 2 ही बना के दिखा दो। हमने कहा हम थोड़ा बनाते, तुम खुद ही बना दोगे, और करदहा में बैठ के बना दोगे। कहने लगे जरा बनवा के दिखाओ। हमने कहा आ जाओ मैदान में, दूर नहीं ले चलेंगे, गांव के चाहे उत्तर हो जाओ, दक्षिण हो जाओ, पूरब हो जाओ, पश्चिम हो जाओ, गांव के बाहर निकलो। जब गांव के बाहर निकले तो हमने मुन्नी वाली ये खलिया दिखा दी। हमने कहा ये क्या खड़ा है, ये सीधा सीधा इस खलिया में क्या। कहने लगे गन्ना। हमने कहा करीब चलो मेरे भैया, करीब पहुंचे, तलिया के किनारे ले गए। हमने पूछा आप क्या, कहने लगे गन्ना। नीचे से बंका मारा, जमीन पे गिर गया। हमने पूछा आप क्या, कहने लगे गन्ना। ऊपर से आग छांट दिया। हमने पूछा आप क्या, कहने लगे गन्ना। उठा के छील छाल के कंधे पे रखा दिया। पूछा आप क्या, कहने लगे गन्ना। घर की तरफ लेके आए। हमने पूछा आप क्या, कहने लगे गन्ना। प्रधान जी की तरफ चले आ रहे थे। हमने पूछा भैया गांव में आ गए हो, अब बताओ क्या, कहने लगे गन्ना। इधर घर के किनारे आए, कोल्हू खड़ा था हाथ वाला, उसी में लगा दिया, कटोरे में भर लिया। हमने पूछा आप क्या, कहने लगे रस। हमने कहा अभी तो देर भी नहीं हुई। वाह वाह वाह, अभी तो देर भी नहीं हुई भाई, बदलते कोई देर हो जाती जब भी गनीमत थी। जरा देर में वही गन्ना कोल्हू में लगाया, कटोरे में भर लिया। हमने पूछा आप क्या, कहने लगे रस। उसी को पका दिया, पतली पतली पकाया। पूछा आप क्या, कहने लगा रात। उसी को कर्री करके पका दी, छोटी सी भिलिया बना के रख दी। पूछा आप क्या, कहने लगा गुड़। क्या बात है। उसी पतली वाली को उठाया, मशीन में डाल के भिटाई हो गई, सफाई हो गई, लाल अलहदा सफेद अलहदा। हमने कहा ये क्या, कहने लगा शक्कर। सुभान अल्लाह। उस शक्कर में खोया मिला दिया, गोल गोल बना दिए। पूछा आप क्या, कहने लगा पेड़ा। उसी को चौकोर काट दिया। हमने पूछा आप क्या, कहने लगा बर्फी। उसी की टेढ़ी बेड़ी चुआ दी। पूछा आप क्या, कहने लगे वही गाँव वाली जलेबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत। हमने पूछा अभी तो कोई देर भी नहीं हुई मेरे भाई, एक ही चीज थी कि 70 बनती चली जा रही है। ये गट्टे कहाँ से लाए, ये गठिया कहाँ से लाए, ये रिवड़ी कहाँ, ये रिवड़ी कहाँ से लाए, ये टाफियां कहाँ से लाए, ये बालूशाही कहाँ से लाए, ये रसगुल्ला कहाँ से लाए, ये छेना कहाँ से लाए, ये तरह तरह की मिठाइयाँ कहाँ से लाए, ये जगह जगह की चीजें, इन सबको गन्ना क्यों नहीं कहते। वाह 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 वाह, गन्ना क्यों नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा जब मामला बदल
محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ یہی تو ہمارے آقا ہے، یہی تو مدینے کے تاجدار ہیں۔ میرے پیارے بھائی، مجھے کوئی بات سے مطلب نہیں، میں صرف اپنے بھائیوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میرے بھائی ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی ہے، ہر چیز میں کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے اس دن آپ کو ایک بتایا تھا کہ اختیار مصطفیٰ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو جو اختیارات عطا فرمائے ہیں، ان اختیارات میں تو آپ حیرت میں پڑے رہیں گے، سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ اللہ نے ایسا پاور کہاں سے دیا۔ جی جی قرآن کی میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے ایک اور پیش کریں گے، هو اللہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی مقدس آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے شکم میں ہی بچے کو ہاتھ پیر اس کے مکمل کر دیے، جو اسے بنانا تھا، خوبصورت کو خوبصورت بنا دیا، کالے کو کالا بنا دیا، گورے کو گورا بنا دیا، بدصورت کو بدصورت بنا دیا، اور جس کو رب بنا دے کیا اسے کوئی پھر بنائے گا؟ نہیں جی کوئی اسے خود پھر بنائے گا؟ میں کہوں گا، میں بھی کہوں گا نہیں، مگر تم بھی کہو گے نہیں، مگر پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کتابوں کے ذریعے کہ سنو سنو، کوئی نہیں بدل سکتا، اگر بدل سکتے ہیں تو مصطفیٰ جانے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بدل سکتے ہیں تو مصطفیٰ جانے رحمت بدل سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے وہ پاور صرف اپنے محبوب کو عطا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ طاقت اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اب کون کہے گا کہاں سے پوچھیں گے؟ تو میں نے کہا کدھر سے پوچھیں؟ تو پہلے تفسیر کبیر کی طرف نگاہ اٹھائی، ادھر سے دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ عارف رومی سے پوچھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عارف رومی رحمت اللہ علیہ اپنی مثنوی میں ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے صحابہ کرام سفر فرما رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرمایا۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، ہم لوگ پانی کہاں سے لائیں، پانی کیسے ملے گا؟ تو عارف رومی فرماتے ہیں جب صحابہ نے سرکار کو اطلاع دی تو میرے آقا نے علی مرتضیٰ کو آواز لگائی، علی یہاں آ جاؤ۔ حضرت علی کو بلایا، حضرت علی حاضر ہوئے۔ جب حضرت علی آئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، ایک حبشی غلام آ رہا ہے، اپنے اونٹ پر ایک پانی کا مشکیزہ لے آ رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اب میرے نبی کے غیب ہونے میں بھی شک نہیں رہا، اس لیے کہ مصطفیٰ یہ بھی جان رہے ہیں کہ حبشی غلام آ رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں مشکیزہ لے آ رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں پانی سے بھرا لا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت یہ خوب۔ ساری چیزیں بغیر غائب دار رسول نہیں بتا سکتا۔ جی جی اور پہاڑ کے پیچھے آ رہا ہے، نبی بتا رہے ہیں، اس کا مطلب میرا نبی پہاڑ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے نبی نے جب فرمایا تو علی انکار کرنے والے کہاں تھے؟ حضرت علی اٹھے اور اٹھنے کے بعد چل دیے، پہاڑ کے پیچھے پہنچے، دیکھا تو حبشی غلام آ رہا ہے، اپنی سانڈنی پر لادے ہوئے ہے اپنا مشکیزہ۔ علی فرماتے ہیں تجھے میرے آقا نے بلایا ہے، کہا میں تمہارے آقا کو نہیں جانتا، کون ہے تمہارا آقا؟ تو علی فرماتے ہیں یا تو رضا مندی سے چل ورنہ میں پھر دوسری طرح اے ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو وہ تیار ہو گیا۔ جیسے ہی جب وہ آیا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تجھے تکلیف نہیں دیتا، ایک برتن رکھا، میرے آقا نے فرمایا اپنے مشکیزے سے تھوڑا پانی ڈال دے تاکہ تیرے پانی میں کمی بھی نہ آئے، اور میرے ساتھ والے جتنے ہیں میرے قافلے والوں کا بھی کام ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے اپنا مشکیزے کا منہ کھولا، ایک پیالے کے اندر، ایک برتن کے اندر اس نے اپنا منہ اس کا کھول کر کیا۔ جی جی اس کے اندر اس نے اپنے مشکیزے کا منہ کیا، اور منہ کرنے کے بعد وہ پانی ڈالنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے
मस्कीजे पर हाथ रख लिया, जी प्याले में हाथ नहीं डाला, जी बर्तन में हाथ नहीं डाला। वो हदीस दूसरी है, वो हदीस दूसरी है जिसमें सरकार ने अपना दस्ते मुबारक रखा है। इसमें सरकार ने मस्कीदे के ऊपर हाथ रख लिया और फरमाया आओ जानिसारो अपने अपने बर्तन लाओ, आओ अपने अपने बर्तन लाओ और भर लो ताकि तुम्हारे आगे के लिए इंतजाम हो जाए। सहाबी आते गए, अपने अपने बर्तनों को भरते चले गए। जब सब अपने अपने बर्तन भरते हुए चले गए, अपनी अपनी जरूरतें हल करते चले गए, अपना अपना पानी लेते चले गए। जब सबका पानी मुकम्मल हो गया, सबने फरमाया आका बस हमारी जरूरतें हल हो गई, पानी हमारे पास मुकम्मल हो गया। मेरे आका ने फरमाया बस अब तू अपना मस्कीजा उठा ले। अब उसने मस्कीजे को जो देखा तो उसमें उसके कोई कतई खतरा पानी का कम नजर नहीं आया। वो हैरत में पड़ गया। कहा आपका नाम क्या है, आपको क्या कहा जाता है? आपने इरशाद फरमाया मुझे, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। जैसे ही उसने कहा तो उसने कहा सरकार बस हमें भी कलमा पढ़ा के ईमान में दाखिल कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़कर वो ईमान में दाखिल हो गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अब मांग ले जो कुछ मांगना चाहे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, मांग ले। सुभान मेरे आका अल्लाह, फरमाते मांग ले जो कुछ मांगना चाहता है, मांग ले जो कुछ मांगना चाहता है। अच्छा बताओ ये बात कौन आदमी कहेगा? वही तो कहेगा जिसके पास सब कुछ होगा। सुभान अल्लाह, बेशक हाँ कहते हैं, जभी तो वो ये कह सकता मांग ले जो कुछ मांगना चाहे। जो कुछ वरना वो तो ये कह देते कहीं इसने सोने की ईंट मांग ली तो क्या होगा, कहाँ से देंगे? हमने वादा कर लिया है मांग जो कुछ मांगना चाहता है। अगर ये चांदी मांगने लगा तो कहाँ से दूंगा? मगर नहीं, मेरे आका ने फरमाया मांग जो कुछ मांगना चाहता है। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह और कुछ नहीं मांगता सरकार, मालो सरवत की जरूरत नहीं, दौलत खजाने की जरूरत नहीं। कहा फिर क्या चाहता है? कहा या रसूल अल्लाह मैं बहुत काला हूँ, मेरे आका मुझे गोरा बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा है। हमसे क्या कह रहा? क्या जुमले हैं, वाह वाह वाह। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, क्या कहा उसने कि या रसूल अल्लाह मैं काला हूँ, मुझे गोरा बना दीजिए। मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मुझे दौलत की जरूरत नहीं, मुझे सरवत की जरूरत नहीं। मेरे आका ने वो जुमले हदीस के गवाह हैं, इरशाद फरमाते हैं आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके चेहरे पर हाथ घुमा दिया, वो नूर की तरह रोशनो मुनव्वर हो गया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इसीलिए तो फरमाते कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कैसे दिया? अब आपने देखा कैसा गोरा हो गया। अभी गोरे का मामला भी फंसेगा आगे बेचारे का, गोरे का मामला फंसेगा। उसने कहा हुजूर अब मैं चल दिया मगर दुआ फरमाए कि मेरा आका भी मुसलमान हो जाए। सुभान अल्लाह, मेरा आका भी मुसलमान। फरमाया हुजूर दुआ फरमा दे कि मेरा आका भी मुसलमान हो जाए। अब वो जब चला और चलने के बाद अपने आका के पास पहुंचा, जब अपने आका के पास पहुंचा तो उसका आका पहचान ही नहीं पाया। कहा कौन है तू, कहाँ से आया है? उसने कहा मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। कहा इतना गोरा मेरा कोई गुलाम ही नहीं। जी सुभान अल्लाह, कहा इतना गोरा मेरा कोई गुलामी नहीं, गुलामी नहीं, मेरा गुलाम तो काला था। तो कहने लगा हाँ आप ये भी सही कहते हैं, मगर पहले आप अपनी ऊँटनी पहचानिए आपकी है या नहीं। तो उसने कहा हाँ ऊँटनी तो मेरी है। कहा मस्कीदा पहचानिए आपका है या नहीं। तो कहा मस्कीदा भी मेरा है। कहा फिर मैं भी आपका हूँ। तो कहा इतना गोरा कैसे? कहा ये बात आपकी सही है, गोरा इसलिए हूँ कि मैं आ रहा था, आने के बाद मुझे अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए। उन्होंने मुझसे जब उन्होंने मुझसे थोड़ा सा पानी मांगा, मैं उन्हें देने के लिए जब तैयार हो गया उन्हें पानी दिया, मगर पानी में कोई कमी ना आई। उन्होंने मुझे कलमा पढ़ा कि इस्लाम में दाखिल कर दिया। जब मैं इस्लाम में दाखिल हो गया तो मुझसे कहने लगे मांग जो कुछ मांगना चाहता। मैंने कहा हुजूर मैं बड़ा काला हूँ, मुझे गोरा बना दीजिए। उन्होंने हाथ फिरा दिया, मैं गोरा हो गया। कहा अच्छा ऐसी
लगा तो उसने कहा तू आगे चल मैं पीछे चलूंगा। उसके आका ने कहा मैं पीछे चलूंगा। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि इस वक्त आप हमारे आका हैं, मैं गुलाम हूँ, मैं पीछे रहूंगा। तो अब उसका अकीदा देखो, वो आका कहने लगा कि जो रसूलुल्लाह की बारगाह में पहले पहुंच गया वो हमारा इमाम है, वो हमसे आगे रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा आपने, चले जा रहे हैं। इरशाद फरमाया जब वो वहां पहुंचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे जा गिरा। फरमाया मुझे केवल कलमा पढ़ा लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया बस तू भी पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम ऐसे फैलता चला गया। अब हम ये कहें कि हाँ हमारी गलती इसमें हो जाएगी अगर हम ये कहें कि अल्लाह की मर्जी नहीं थी, रसूलुल्लाह ने जबरदस्ती ऐसा कर दिया तो हमारी गलती है। नहीं नहीं, रसूल ने जो कुछ भी किया है वो खुदा के दिए हुए पावर से किया। जी जी बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। अकीदा है कि उनके रब ने जो उन्हें पावर दिया था उसी से किया। अरे ये सारे उलमा, इसमें कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं। हिंदुस्तान के किसी भी फिरके का कोई आलिम हो, हर एक जानता है कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान जंग में जंग लड़ रहे हैं और जंग लड़ते लड़ते उनका चेहरा अजीब सा मुरझा गया और वो सर नीचे लचाए कुछ तलाश कर रहे हैं। उनसे पूछा सहाबा ने क्या तलाश कर रहे हैं हुजूर, क्या तलाश कर रहे हैं, क्या तलाश कर रहे हैं? ऐसा वक्त जान के लाले पड़े हुए हैं, आपको जंग करना चाहिए। अरे जंग के सिपे सालार आप अपना सर नीचे लचाए मुरझाए हुए हैं। आप फरमाते न पूछो, मेरी एक नायाब दौलत खो गई है, मेरी एक नायाब खजाना खो गया है। हुजूर को क्या खजाना है जरा पता तो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हुज्जतुल वदा में क्या फरमाया उन्होंने? हुज्जतुल वदा में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे मुबारक मुंडवाया तो उनके बाल तमाम सहाबा ने बांट लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बता भैया, तबर्रुक में बाल बटे, बाले मुबारक बांटे किसने? सहाबा ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाल बांट लिए सहाबा ने। हजरत खालिद फरमाते मुझे भी 3 दस्तयाब हुए। सुभान अल्लाह। कितने मिले? 3। फरमाया मुझे 3 मिले। उन तीनों बालों को मैंने बाहिफाजत अपनी टोपी के अंदर सी लिया है। टोपी कैसे रंग की? फरमाया लाल रंग। फरमाते लाल रंग की मेरी टोपी है, मैंने उसके अंदर बाहिफाजत छिपा लिए। जिस दिन से वो टोपी लगा लेता हूँ बालों की बरकत से मैदान जीत लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत खालिद बिन वलीद सब नीचे लचाए यूं ही ढूंढते ढूंढते खालिद बिन वलीद की निगाहों के सामने वो टोपी पड़ी, चट उन्होंने उठा ली। अब उठाने के बाद जैसे ही वो लाल टोपी सर पे लगाई खालिद बिन वलीद ने मैदान जीत लिया। फरमाया ये बालों की बरकत है जिससे खालिद जीत लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ तक अल्लाह के नबी के कमालात आपको दिखाए जाएं। ये उनके परवरदिगार ने कैसा कमाल अता फरमाया, कैसा कमाल अता किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रब ने बेशुमार कमालात अता फरमाए। आज हम पशु पेच में लगे हुए हैं कि साहब ये कैसे होना चाहिए। मैंने आपको बताया मैदानी कब्र में जाने के बाद पूछताछ भी तो होती है, सभी इसमें जानते हैं। कभी पूछा जाता है कि तुम्हारा रब कौन है, तो हर एक बता देता है मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का तुम्हारा दीन क्या है, तो दीन भी बता दिया, दीन इस्लाम। अब अगर बात लंबी और चली जाए तो बहुत सी हदीसें तो इस बात पर शाहिद है और खुदा का कुरान भी इस बात पर शाहिद है कि हम 2 जमातों को एक नहीं रहने देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है कि हम ईमान और कुफ्र को एक नहीं होने देंगे। सुभान अल्लाह। और कुफ्र क्या, हर चीज 2 तरह की होती।
جی ہر چیز دو طریقے کی دو طرح کی ہو جاتی، کوئی چیز ایسی نہیں جس میں دو طرح نہ ہو۔ ہر چیز لاؤ، انسانوں کو لاؤ، کوئی کالا ہے تو گورا، کوئی گورا ہے تو کوئی کالا، تو سب علیحدہ علیحدہ جیسے ہی ہیں ایسے ہی کفر کی بھی دو حالتیں ہوتی۔ جی ایک تو کفر وہ ہے جو سراپا پورا ہو، یعنی ایمان ہی نہیں لایا، اور ایک وہ ہوتا ہے جو ایمان لایا، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اور اس کے بعد بھی کافر۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو اس کو آپ اب آ جائیے، آپ اس دن کے میدان میں لائیے، جیسے آج ہم سمجھا دیں مولانا یونس صاحب آپ سے کہنے لگے کہ صاحب مسجد چھوڑ کر آپ نے نماز کیسے پڑھی؟ جی جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جی امام کون تھا؟ حضرت عثمان غنی، رضی اللہ اور کس مسجد کے امام تھے؟ مسجد نبوی مسجد نبوی شریف۔ جی سبحان اللہ۔ تو مسجد نبوی شریف کا مقام کیا صحابہ کو معلوم نہیں تھا؟ کیا جملے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان کیا اللہ۔ مقام مسجد نبوی صحابہ کو معلوم نہ تھی؟ حضرت علی کی شہادت کے بعد 3 دن تک صحابہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہے، مسجد نبوی نہیں آئے جب تک کہ حضرت علی کو خلیفہ مقرر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، حضرت عثمان کی، سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سبحان اللہ، 3 دن تک صحابہ مسجد نبوی شریف میں نہیں آیا۔ جب تک علی، کیا ان صحابہ کو یہ معلوم نہیں تھا جی کہ مسجد نبوی کی اہمیت کیا ہے؟ جی مسجد نبوی کا مقام کیا ہے؟ اس کی عظمتیں کیا؟ مگر نہیں، وہ جانتے تھے کہ مسجد نبوی تو اعلیٰ ہے، مگر تیرے اعلیٰ کے ساتھ امام بھی اعلیٰ چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، حق ہے، امام اعلیٰ ہوگا تب صحابہ کی پیشانیاں ان کے پیچھے ہوگی، سبحان اللہ، ورنہ نہیں۔ 3 دن تک متواتر صحابہ مسجد نبوی شریف میں نہیں آئے، جی اپنے گھروں میں نماز ادا فرماتے رہے۔ دلائل کے لیے ہمارے پاس ذخیرے موجود ہیں، ذخیرے موجود ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے اپنے ماننے والوں کو وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب ہمیں اپنے ایمان کا ہے، سبحان اللہ، مطلب اپنے ایمان کا ہے۔ تم سے مطلب صرف اتنا ہے کہ میرے بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بھی سمجھ جائیں، تم بھی سمجھ جاؤ۔ سبحان اللہ، تم ہمارے بھائی ہو، جیسے نبی ہمیں اپنے دامن رحمت میں لے، ہم چاہتے ہیں ہماری بستی والوں کو بھی رسول اللہ سبحان اپنے اللہ، دامن رحمت میں لے لیں۔ سبحان اللہ، پیار کی وجہ سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس پیار کی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ خوب جانتے ہیں وہی ہے مدینے کے تاجدار، وہی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دستے مبارک رکھ دے تو انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکل آئے۔ کیا کبھی پانی کا چشمہ بھی کسی نے نکلتے دیکھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا، اس نے کہا، اللہ کے نبی نے اسے فرمایا کہ تو شہادت دے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا ہمارے علاوہ آپ کو کون مانتا، آپ کی یہ بات کون مانے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرے نبی ایسے شان والے تھے، اشارہ کر دیا، فرمایا تو مان یا نہ مان، ببول کا پیڑ مانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، فرماتے تو مان یا نہ مان، ببول کا پیڑ مانے، یہ ببول کا پیڑ مانے گا۔ میرے نبی نے اشارہ فرمایا ببول کے پیڑ تو بتا دے، ببول کا پیڑ زمین پہ گرا اور اپنی جڑیں اکھیڑی، دھسٹا ہوا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ گیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک صفحہ 532 کی حدیث پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں آقا؟ تو مان یا نہ مان، مگر ارشاد فرمایا ببول کا درخت مانے گا۔ اب وہ ببول کا درخت گھسیٹتا ہوا آیا، میرے آقا نے فرمایا ہاں بتا تو کہ واقعی اشہد اللہ کا آپ جو کچھ فرماتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں۔ تو درخت نے مان
लिया। मेरे प्यारे अफसोस इस चीज का है कि जब दरख्त मान रहे हैं तो हम कैसे भूल जाएंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या जुमले हैं। हमारे नबी की शान जब दरख्तों ने मान ली है तो हम कैसे भूल जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हजरत, अब आप देखें हजरत एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाया आपने? उनका जब एहसान इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको खूब मालूम है, उनके बेटों ने कहा कि या रसूलल्लाह, हमारा बाप जंग ओहद में मैदान जंग में शहीद हो गया जी, मगर या रसूल अल्लाह इतना कर्ज उन पे हो गया कि अब हमें अदा करना मुश्किल है। सरकार, अब हम खजूरें तोड़ने जा रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कि आप हमारे साथ चलिएगा और आप वहां बैठ जाइए ताकि कर्जदार ज्यादा चीखे चिल्लाए नहीं और अपना दबाव ना बना। जी सुभान अल्लाह। फरमाया थोड़ी देर हाजिर रहिएगा, लोग आपको देख कर रहम करेंगे। तो आका ने फरमाया ठीक, चलो तुम अपनी खजूरें तोड़ो, अलहदा अलहदा ढेर लगाना, मैं आ रहा हूँ। वो गए और तोड़ने लगे। जब तोड़ने लगे तो उन्होंने अलहदा अलहदा ढेर लगा दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे तो कर्जदार पहले तो धीरे थे, मगर जब नबी को देखा तो कहा अपना कर्जा बाकी कतई नहीं रखेंगे, तुम्हें सब कुछ देना होगा। हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा ठहरो तो सही। एक ढेरी के इर्द गिर्द आका 3 बार घूमे और घूमने के बाद मेरे आका उस ढेरी पे बैठ गए। फरमाया तमाम कर्जदारों को बुला लो। सारे कर्जदार बुला दिए गए और उनसे कहा इनका कर्जा देना शुरू करो। सबका कर्जा तोड़ तोड़ के निपटाया जाने लगा। सारे कर्जदारों का कर्जा निपट गया और निपटने के बाद खजूरों में कोई कमी नहीं आई। तो फरमाते, क्या फरमाया उनके बेटे ने? इरशाद फरमाते, मैं तो सोच रहा था कि मेरी बहनों के लिए कोई खजूर बाकी न रहेगी, मगर कसम अल्लाह की जब नबी ढेरी पे बैठ गए तो ऐसा मालूम होता है कि मेरे खजूरों में कोई कमी नहीं आई और जो कर्ज था वो सब निपट गया। क्या कैसे निपटा? इसी को तो आला हजरत फरमाते हैं, वो मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, बहुत समझ के जिंदगी गुजारो। किसी से लेने देने का मामला नहीं, मतलब सिर्फ मेरा ये है कि मेरे भाइयों, इस्लाम समझो, अल्लाह के महबूब को समझ जाओ। बगैर महबूब खुदा के कोई काम आने वाला नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर हदीस पाक, यार ऐसी मारूफ हदीस पाक है, इरशाद फरमाते सब दौड़ेंगे, सब दौड़ेंगे। माँ के पास जाएंगे, माँ मना कर देगी। बाप के पास पहुंचेंगे, इसमें कोई फिरका नहीं है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। ये तो सब ऐसी बात है मगर सिर्फ समझने की बात है। ये हदीस तो सभी पढ़ेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सब भूल जाएंगे। जब कोई किसी के पास जाएगा वो यही कहेगा, नफसी नफसी, हमें अपनी पड़ी है, हम तुम्हें क्या देखें। सबके पास गए तो कहा कहाँ जाए, तो कहा जाओ हजरत आदम के पास। सुभान अल्लाह। कहाँ जाओ? हजरत आदम के पास, जो तुम्हारे बाप है उनके पास जाओ। लोग जाकर हजरत आदम के पास पहुंचेंगे, आदम सफीउल्लाह हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी रहनुमाई फरमाइए ताकि हमें किसी तरह जन्नत अता हो जाए, जन्नती कराइए। आप इरशाद फरमाते, लस्तो लहा, मैं इसके लिए नहीं हूँ। फरमाया फिर कहाँ जाए? कहा वलाकिन नबी इब्राहीम फइन्नहु खलीलुल्लाह, तुम सबके सब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास चले जाओ। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास जाओगे वो तुम्हारी मदद करेंगे। लोग दौड़ेंगे और इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास पहुंचेंगे। वहां जाने के बाद कहेंगे, ऐ अल्लाह के खलील हमारी हिमायत कीजिए, हमारी मदद कीजिए। वो भी फरमाते लस्तो लहा, मैं इसके लिए नहीं हूँ, मैं इसके लिए नहीं हूँ। फरमाया कहाँ जाए? इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, अगर बख्शिश चाहते हो, नजात चाहते हो, आखिरत में अपनी मंजिलें तय करना चाहते हो, वलाकिन अलैकुम बिमूसा फइन्नहु कलीमुल्लाह
कलीम अल्लाह, तुम हजरत मूसा कलीम अल्लाह के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब जाने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दौड़ रहे हैं। वहां जब पहुंचेंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह के कलीम हमारी मदद कीजिए, हमारी रहनुमाई फरमाइए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी यही जवाब देते हैं, लस्तो लहा, मैं इसके लिए नहीं हूँ, मैं इसके लिए नहीं हूँ। फरमाया फिर कहाँ जाए? आदम ने भी मना कर दिया, इब्राहिम ने भी मना कर दिया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आप भी मना कर रहे हैं, कहाँ जाए? कहा वलाकिन अलैकुम ईसा फइन्नहु रूहुल्लाह व कलिमतुहु, जो रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह दोनों हैं, उनके पास जाओ। अब दौड़ते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उनसे अर्ज किया कि आप हमारी हिमायत और मदद कीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं, लस्तो लहा, हम इस काम के लिए नहीं हैं। फरमाया आप कहाँ जाएं? अब ये बात ये यूं ही समझते चलो, मूसा कलीमुल्लाह ने कहा हम इसके लिए नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा हम इसके लिए नहीं, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा हम इसके लिए नहीं, मूसा कलीमुल्लाह ने कहा हम इसके लिए नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हम इसके लिए नहीं। तो बताओ जब ये अंबिया इस काम को नहीं अंजाम दे पा रहे हैं तो फिर कौन करेगा? जी क्या हम जैसे मौलवी कर डालेंगे सब? नहीं। अरे जो काम नबी मना कर रहे हैं उसे हम क्या कर पाएंगे? जी। और हम अपने आप ठेकेदारी करें कि साहब हाँ दे देंगे। जब नबी मना कर रहे हैं तो हम मौलवियों के क्या बस की बात है जो जन्नत दिलाते हैं? जी। उन्होंने मना कर दिया, हदीस शाहिद। तो अब क्या कहते हैं? इरशाद फरमाते मैदान महशर में कहने वाले कह रहे थे, ऐ ईसा रूहुल्लाह अब हम कहाँ जाएं और किससे कहें? कहा सुनो, अगर बख्शिश चाहते हो, नजात चाहते हो, भलाई चाहते हो, अच्छाई चाहते हो, जन्नत चाहते हो तो वलाकिन अलैकुम बिमुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम सब के सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, तुम्हारी मदद हो जाएगी। सब दौड़ते हुए, इरशाद फरमाते सब दौड़ते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जैसे ही पहुंचेंगे मेरे आका फरमाएंगे लस्तो लहा, इरशाद फरमाते मेरे आका फरमाएंगे अना लहा, आओ मैं इसी काम के लिए हूँ, आज का काम मेरे ही सुपुर्द किया गया है। इसीलिए तो कुरान ने फरमाया असा अय्यबासा रब्बुका मकामम महमूदा, यानी मकाम महमूद पर, बुलंदी पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा। और उस दिन मैदान महशर के दिन उन्हीं के साये के नीचे सब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब होंगे कौन? होंगे तो साये में वही लोगों को इस लायक समझेंगे, वही तो जाएंगे। जी। तो इसलिए मैं प्यारे कह रहा हूँ कि अभी से मान लो, आला हजरत ने इसीलिए कोई गड़बड़ी नहीं की, आला हजरत ने समझा के शेर पढ़ा था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे आला हजरत ने सिर्फ समझाया है, समझाया, अशार पढ़े समझाया कि ताकि धोखा न खाना। फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल ना मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। कयामत में माना तो क्या फायदा होगा? फायदा आज ही है कि मान लो। अगर मान लोगे तो इंशाअल्लाह दोनों जहान में काम हो जाएगा, फिर तो जरूरत ही न लगेगी। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, जब मुझे, अरे यहीं तक महदूद नहीं, मेरे आका फरमाते हैं कि जब मैं जाऊंगा मुझे खबर मिलेगी कि आपके उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले गए हैं, तो मैं जब दौड़ूंगा और जहन्नम के करीब पहुंचूंगा तो जहन्नम पुकार कर कहेगी या रसूल अल्लाह, जल्दी अपने उम्मती को निकाल लीजिए, आपकी रहमत हमारे शोले उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आपकी
کی رحمت سبحان اللہ آپ کی رحمت ہمارے شعلے بجھا رہی ہے. جس کی رحمت جہنم کے شعلے بجھا دے اس کی رحمت دنیا کے شعلوں کو کیا سمجھے. سبحان اللہ بہت خوب. اس لیے میرے پیارے بھائی ابھی وقت ہے سمجھنے کا, ابھی وقت ہے, ابھی ٹائم ہے, سمجھ جاؤ. اگر ہم سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ زندگی کی بہار آ جائے گی, زندگی میں مزہ آ جائے گا. ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی بہاروں میں ہو جائے گی. اس لیے میرے پیارے بھائی, اور میں نے کئی بار آپ کو یہ بھی بتایا کہ جیسے جو سامنے کھانا پینا جو رکھ کے فاتحہ دلائی جاتی ہے, اس میں ہر ایک جانتا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, میری والدہ نہیں رہی, میں اپنی والدہ کے لیے کیا کروں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو, ایک کنواں تیار کرو اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کنواں کو اپنی والدہ کے نام پر وقف کر دو. سبحان اللہ. وہ صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ. چلے آئے, کنواں تیار ہو گیا. اور تیار ہونے کے بعد کنویں کے سامنے کھڑے ہوئے, کنواں کو آگے کیا, اپنے آپ پیچھے ہو گئے, ہاتھ اٹھائے, فرمایا ہے میرے پروردگار یہ کنواں میں اپنی والدہ کے نام سے وقف کرتا ہوں, جو اس کا پانی پیے اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب صحابی نے آگے کیا تو ہم تو صحابی کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. آگے رکھ لیتے, سبحان اللہ. پانی آگے رکھ لیتے ہیں, سبحان اللہ. شیرینی آگے رکھ لیتے ہیں, اس لیے کہ اگر حضرت سعد کنواں پیچھے کر لیتے تو ہم کھانا بھی پیچھے کرتے. کیا بات ہے. سعد نے کنواں آگے کر لیا تو ہم نے کھانا اور پانی سب آگے کر. سبحان اللہ. ہم نے کہا سعد تمہارا طریقہ نہیں چھوڑیں گے, اس لیے کہ تم صحابی رسول ہو, اور صحابی اس کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی کی تعریف یہ ہے کہ صحابی جو حالت ایمان میں رسول اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھے اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو, سبحان اللہ. صحابی کہتے ہیں. بے شک بے شک. تو اس لیے میرے پیارے بھائی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھ عطا فرمائے. ٹائم بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے, مولانا صاحب کی بھی تھوڑی دیر تقریر ہونا ہے. یہ میری غلطی ہے کہ میں اپنے گاؤں کے اندر اس طرح سے بول رہا ہوں, ان کو میں نے بٹھا رکھا ہے کہ ان کو ہی بلانا چاہیے تھا, مگر نہیں, میں نے سوچا چلو یہ بھی میرے برادری کبیر ہے, اگر باہر کا کوئی ہوتا تو تکلیف محسوس کرتا, اس لیے میں نے کہا لاؤ میں بھی تھوڑا سا بول دوں, اس لیے کہ مجھے بھی گاؤں میں بولنے کا موقع کہاں ملتا ہے. تو میں نے کہا چند باتیں میں ہی بتا دوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. ہم سب کے گناہ کبائر اور صغائروں کو اللہ معاف فرمائے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے الہی کسی طرح کے کوئی لفظات ہو گئے ہوں اس سے توبہ کرتے ہیں, اپنے کرم سے اپنے محبوب کی رحمت کاملہ کے صدقے سے معاف فرما دے. اس ذکر خیر کو ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے, ذریعہ عمل بنا دے, ذخیرہ آخرت بنا دے. یا اللہ پروردگار عالم ہماری اس خدمت کو